All right. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for another Bachpan Manao Badhte Jao masterclass. Today we have the team from Aga Khan Foundation who's taking our masterclass on Khel Konas or Play Corners. All of y'all will get a first-hand understanding of what Khel Konas are, and you will be hearing from caregivers themselves. They'll be talking about, how it all began. The AKF ECD team and the education team are here. They'll be talking about how it all began, the opportunities to play and learn that Khel Konas offer for children and parents together, and how you can set it up. I think we all really want to know how we can set this up at home, and the promise it has. All this and much more. Let's get started. Ketki, over to you. Thank you so much, Hita. Am I audible? Great. Thank you. So thanks, Hita. A very warm welcome to all our viewers today. And Aga Khan Foundation is delighted to present the concept of Khel Konas from its early childhood development programs in 3 districts, Bahraich, Lakhimpur, and Sitapur in Uttar Pradesh. I'm Dr. Ketki, and I'm the Senior Program Officer for ECD and Education in AKF India. Before we delve deeper into today's theme, I will briefly share about our organization. So AKF is part of the Aga Khan Development Network. We bring together human, financial, and technical resources to some of the most marginalized communities, expanding opportunities for them to improve overall quality of life. We began our operations in India in 1978, and we implement programs both in urban and rural areas across multiple themes, which include agriculture and food security, climate resilience, ECD, economic inclusion, education, health and nutrition, and work and enterprise. ECD is a key priority for the foundation, and across its implementation geographies, which include Bihar, Delhi, Telangana, Uttar Pradesh, and Maharashtra. Strategically, if we speak about Khel Konas, then our approach that communities comes first was actually how the concept was, the inception of the concept. We have a strong commitment to the communities we work with. Engaging with them is a core part of our work. We design ECD solutions with them. And somewhere we realized while our programs were ongoing that the early learning aspect, and how caregivers are part of the journey remains largely untapped. And, if we understand that children in the ages of 0 to 6, how important the home environment is and how significant are the influence of early years, then we would also mean that we enhance the role of caregivers in that early learning in that environment. Improving the home learning environment is an opportunity to minimize learning deficits from the start. And it was always the case with us that we knew that if we make an early start, it will be a good start. So changing the role of parents from being bystanders in the journey to AKF engaging them, this actually began while the pandemic was ongoing. So our first pilot of the Khel Kona took place while the pandemic was on and our Anganwadi centers were closed. We thought that technology seemed to be a solution, but then for young children, exposure to screens was something that we wanted to seek an alternative for. And that's how the alternative needed to be safe, support learning, and also be play based. At the same time, while the Anganwadi centers opened, we noticed that the play corners that we had set up with Anganwadi centers, there was a huge amount of, enjoyability, the element of enjoying and being invested in the process that we noticed with children. I mean, if they were engaged within themselves, they were playing with their peers, they were using the material at the play corner, or they were guided by the Anganwadi workers, in games, in guided play. All that seemed to be something which the children were actually learning from. When we spoke to our mothers, fathers, our grandparents, and you will meet all of them today, what would it be that would we can create a similar kind of environment at home?
they came back and said that these kind of opportunities are negligible. We don't have much of such play spaces areas at home. At the same time, even the communities and neighborhoods do not have such learning or play opportunities for our children. um, Looking at those kind of aspects, we had to see how children are happy, their childhood is fulfilled, with play, the environment is secure and healthy. Today there are 150 khel konas, and many of them have been self initiatives. All of them have not been through AKF. They are set up and sustained by caregivers in these districts. Children experience the play corners or the khel konas as their own space, where they can play and learn at their own pace. And caregivers bring the entire world of the home that the children are part of in the khel kona. So the role play that caregivers do is based on children's experience at home. At the same time, the khel konas have boosted social interaction, emotional development. They have boosted vocabulary of our children. They are much more aware of their surroundings. Language and communication is stronger as compared to what it was before the khel konas were there. And a plethora of learning opportunities have opened up for our children then. Taking the masterclass forward and bringing you more about our khel konas, I would like to introduce the AKF team now and begin with Karar and request him to introduce himself. Hi, namaste everyone. My name is Karar Hussain and I am part of Aga Khan Foundation and I am based in Lucknow. Here with me, my colleagues and caregivers have joined from Bahraich, Lakhimpur and Sitapur districts. So I would request Pragya to introduce herself and caregivers there. Thank you so much, Karar, for this wonderful invitation. हेलो नमस्ते सभी को. मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं आगा खान फाउंडेशन में एज अ प्रोग्राम ऑफिसर एजुकेशन और ईसीडी टीम को लीड कर रही हूँ और आंगनवाड़ी और स्कूल के टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिका, इवन केयर गिवर्स के साथ काम कर रही हूँ. आज मेरे साथ जो दो हस्तियाँ हैं वो है रेनू जी और दूसरी है सरोज जी. क्या हम सभी को नमस्ते बोल सकते हैं? तो पहले हम इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हम शेयर करेंगे कि आगे हम खेल कोना के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे. ओवर टू लखीमपुर टीम. जावेद, ओवर टू यू. थैंक यू. थैंक यू प्रज्ञा जी एंड हाय एवरीवन. मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं आगा खान फाउंडेशन के लखीमपुर ऑफिस बेस्ड हूँ और यहाँ पर एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सपोर्ट करता हूँ ईसीडी और एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में. मेरे साथ यहाँ लखीमपुर से दो केयर गिवर जुड़े हुए हैं. एक हमारे साथ हैं कड़ीले लाल जी और एक हमारे साथ हैं शिवानी जी. कड़ीले लाल जी जो कि स्वीटी के दादाजी हैं और शिवानी जो है इनके दो भतीजे हैं, एक रियांश और प्रियांश. एक बार सभी को अपनी तरफ से हेलो. थैंक यू. रिया की तरफ मैं जाना चाहूंगा सीतापुर. रिया, आप स्वयं को और जो है आपके साथ जो केयरगिवर जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार उनको इंट्रोड्यूस करो. थैंक यू सो मच जावेद जी. मैं रिया हूँ और मैं आगा खान फाउंडेशन सीतापुर से ज्वाइन कर रही हूँ. मेरे साथ भी दो मदर्स हैं, एक प्रेमा जी हैं और साथ में मीना जी हैं. तो इसके साथ साथ हमारे साथ अंजलि जी भी जुड़ी हैं जो सीतापुर से जुड़ी हैं. आई विल रिक्वेस्ट अंजलि टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड द केयरगिवर. हेलो एवरीवन, मैं अंजलि यादव हूँ. मैं सीतापुर से जुड़ी हूँ विमलेश जी के साथ, जो कि ही इज अ फादर फ्रॉम सीतापुर ओनली. नाउ आई विल हैंड ओवर टू केतकी जी. थैंक यू. Thank you, Anjali. We have a short video to share with all of you, which is, our impressions and basically our feelings to do with the Khel Kona. It includes caregivers as well as the AKF team members. But before we go on to the video, would I request our participants today to, add into the chat about what they think is a Khel Kona for them. It will be great to hear from all of you.
We could also play the video. खेल कोना बच्चों की उत्तरदायी देखभाल करने का एक उत्तम स्थान मैं है। कहना चाहती हूँ कि खेल कोना मेरे बच्चों के लिए बहुत खुशियों का मेला है। खेल कोना एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खेलने के लिए समय मिलता है। For me, the play corner it's a lively place where children's fun, learning and imagination comes to life. पे घर कोना जो है वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं और हमारे पास पड़ोस के बच्चे जो भी छोटे बड़े हैं आते हैं यहाँ खेलते हैं। हमारे घर में छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए खेल कोना बनाई हूँ। हम सब खेलते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। हर चीज़ की जानकारी उनको मिले, इसलिए हम खेल कोना बनाए हैं। इसमें देखभाल कार्यकर्ता द्वारा बच्चों के साथ में तरह तरह की गतिविधियां करता है और जिससे कि बच्चे काफ़ी अच्छे से उसके साथ खेलते हैं और उनका सर्वांगीण विकास हो पाता है। खेल कोना बच्चों का घर है, इससे उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, इससे हमारे बच्चे खेलते हैं। जैसे हमारे घर पे और हमारा किचन है, हमारा रूम है, पूजा वाला घर है, वैसे ही हमने बच्चों के लिए खेल कोना बनाया है। खेल कोना is a place at home to play and have fun together. Thank you. So we have some responses and they're great, I would say. So we have Khel Kona is a great concept for learning. Khel Kona is a place where children are the boss. So that certainly is so. Yes, true. So that's a great response. Yes, they are. Khel Kona is the best initiative for learning of children with playway method of learning. Khel Kona is बच्चों का own किया गया place. Yeah, agree with you, Aditi. So thank you so much. I mean, this is what we resonate with completely. We will go on and we'll keep looking at the chat as well. We'd love to have your responses. And over to Karar again to present the components of the Khel Kona. Thanks a lot, Ketki. Can we have the presentation? So thanks, Ketki. As Ketki defined the Khel Kona, I will talk about its components. And one of the basic requirement of Khel Kona is to have an accessible and safe space for children to play at home. The space should be well ventilated and have adequate light. The Khel Kona consists of eco-friendly dolls, puppets, and toys made from locally available materials, mostly waste materials. We also promote interactive storytelling and folklore by caregivers in this space. We have established book kiosks in these villages, and sometimes caregivers lend the books from there to do storytelling with children. Book kiosk basically एक डब्बा जैसा लाइब्रेरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सामुदायिक पुस्तकालय भी बोलते हैं, और इस कियोस्क से पेरेंट्स, केयर गिवर्स और बच्चे कभी भी बुक्स इशू करवा सकते हैं। और इस कियोस्क में बच्चों के एज अप्रोप्रिएट और काफी सारे पिक्टोरियल बुक्स हैं, और हम बहुत छोटे बच्चों के साथ भी स्टोरी टेलिंग को प्रमोट करते हैं। The space provides a lot of opportunities for pretend, guided, and free play. Children use materials like puppets and stuff made from clay for pretend play. The space has toys which promote the recognition of different sounds and textures for children. Caregivers also display the TLM based on early language and mathematics concepts like near, far, tall, and short, etc. Some of the caregivers are also go to extra length and make swings for children using used saris or used tires. They are making wood walkers using used sleepers as wheels. Some of the caregivers also involve their children in gardening activities and expose them to the surrounding environment. तो काफी सारे केयर गिवर्स ऐसे हैं जो बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करें उस पे भी लेके जा रहे हैं। तो खेल कोना तो घर पे है ही, आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट करने पे कंसिस्टेंटली काम चल रहा है। So next we have some mothers, fathers, grandparents and kin of children here who have been
actively supporting the function of Khel Kona. Some of them have been working with us from last 2 to 3 years. They are here to share their experiences and tell their stories. I would like to request Pragya to further start the interaction with caregivers at their age. Thank you. Pragya. थैंक यू सो मच करार। तो मेरे साथ है रेनू जी। तो रेनू जी से हम पहले पूछेंगे कि रेनू जी क्या आप बताएंगे कि आपका थोड़ा सा परिचय सबको बता दें, और आपके घर में खेल कोना में क्या क्या चीजें आपने बनाए हुए हैं ये भी थोड़ा सा बता दें। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा नाम रेनू देवी, मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ। मेरे 4 पोता और पोती है और उनके दादी हूँ मैं। मेरे घर में खेल कोना बना है। मैं बहुत सारे खिलौना बनाए हैं। ये देखिए, ये सब्जी है, गाजर है, मूली है, लौकी है, टमाटर है, बैगन है और कद्दू भी है। ये है सब्जी है। और देखिए ये जो गिट्टी है, गिट्टी का हमने कलर कर दिया है ये बच्चे, ताकि कलर पहचान कर सके और गिनती भी कर सके। ये देखिए हमने जो टॉफी का पन्नी होते हैं, कागज़ होते हैं, उसी का हमने गिट्टी डाल करके देखिए टॉफी बनाए हैं, ताकि बच्चे इससे खेल सके और खुशी हो सके। ये टॉफी है, नकली टॉफी है। और ये देखिए हमने जो मक्का का टुकड़ी होते हैं उसके हमने कलर करके इसके धागा डाल दिया है कि बच्चे इसमें कलर पहचान कर सके और गिन भी सके, गिनती कर भी सके। ये देखिए हमने बनाए हैं जो धागे का वो होते हैं, रील होते हैं, उसके फेंक देते हैं, उसके हमको लेकर के धागे में डाल दिया, बच्चे खिलौना वाला काम कर सके। और देखिए हमने मिट्टी का भी खिलौना बनाए हैं, गोली बनाए हैं, रंग करके इसका रंगीन बनाए हैं, बच्चे रंग पहचान कर सके, गिनती कर सके। और गुड़िया गुड्डा हमने बनाया है। देखिए बहुत सारे खिलौना हमने बनाए हैं। ये देखिए गुड्डा है, गुड़िया है, इसमें पुराना कपड़ा से बनाए हैं, इसमें रुई डाले हैं। हमारे बहू घर में सिलाई करती है, इसलिए वो जो पुराना कपड़ा बचा कुचा होता है उसके हमने रुई डाल के बना देते हैं। और देखिए हमने पुराना रुमाल से हम खरगोश बनाए हैं, पुराना कपड़ा इसमें डाले हैं, खरगोश बनाए हैं। और जो माचिस के डिब्बी होते हैं, उस डिब्बी में जो फेंक देते हैं, उसको डिब्बी को लेकर के कंकड़ डाल के हमने देखिए झुनझुना बनाया है। देखिए, और ये जो भाई ये देखते हैं, इसमें जो दुकान में मिलता है, बच्चे खा करके फेंक देते हैं, इसमें खाने वाला सामान होता है, बच्चे फेंक देते हैं, उसको हमने ला करके इसके झुनझुना देखिए कितना अच्छे से बनाए हैं। और देखिए ये गेंद बनाए हैं, इसमें पुराना कपड़ा से थोड़ा रुई डाल के इसमें गेंद बनाए हैं हमने। और ये जो बोतल होते हैं, बोतल काट करके इसके ढक्कन डाल करके हमने 4 पहिया गाड़ी बना दिए हैं, बच्चे इसके खेल सके। और ये देखिए ये दवा के जो डिब्बा होते हैं, दवा के डिब्बा से हमने गाड़ी बना दिया है, बच्चे आस्ते से खेलते हैं इससे। और ये देखिए बिल्ली बनाए हैं, बिल्ली से खेलते हैं बच्चे। और हमने चिड़िया बनाए हैं, देखिए तरह तरह के चिड़िया बनाए हैं, तरह तरह के कई तरह की चिड़िया बनाए हैं। ये तोता है, ये दूसरा चिड़िया है। और ये चिड़िया से एक चिड़िया और बनाए हैं, देखिए अलग है। ये चिड़िया के देखिए पंख लगा है, बाल लगा है, जो हमने कबूतर के बच्चा को पुराना जो बाल होते हैं उसी को चिपका दिया है इसमें। बच्चे इसको खेलते हैं और अच्छे अच्छे कहते हैं, ये अच्छे हैं, प्यार से खेलते हैं इसको। देखिए कितने प्यारा है। तो रेनू जी थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने जो क्ले से बनाए हुए हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, कहानी सुनाने के लिए, वो थोड़ा सा आप दिखाएंगे कि आपने क्या क्या बनाए हैं? बनाए हैं बहुत सारे खिलौना बनाए हैं। देखिए कितने प्यारा सा खरगोश है, देखिए खरगोश है, ये आम है, मिट्टी का खिलौने है, ये आम है। और ये देखिए ये बकरी है, ये बकरी है, कितने अच्छे अच्छे बकरी है। ये देखिए हाथी बनाए हैं, ये देखिए हिरन बनाए हैं। और ये देखिए ये चिड़िया बनाए हैं, ये मछली बनाए हैं। और ये देखिए केचुआ
केचुआ बोलते हैं इसको, और ये आम है, ये बैगन है, और ये भी आम है, ये मूली है, और ये आम है, ये हिरन है, ये गाजर है, चलिए बच्ची बढ़िया। है। तो अभी रेणु जी के साथ जो हमने, रेणु जी आपके घर में आपने इतने सारे सामान बनाए हैं, हमारे साथ सरोज जी भी है। हम सरोज जी से पूछ लेते हैं कि उनके घर में, उनके खेल कोना में उन्होंने क्या बना के रखा है। जी सरोज जी। सभी से मेरा नमस्ते। और हमारे खेल कोना में जैसे कि बिल्ली का चित्र बनाए हैं, फिर बिल्ली का चित्र बना के कैंची से काट दिए हैं और कोने में रख दिए हैं। तो बच्चे देखते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे जोड़ो बिल्ली बनाओ, तो बिल्ली बनाते हैं बच्चे। और हाथी भी, हाथी का चित्र बनाते हैं, हाथी का चित्र काट के फिर दे देते हैं बच्चे को कि बच्चे इसको हाथी बनाओ, तो बच्चे जोड़ते हैं। और सेब बनाते हैं, तो सेब इसमें इसलिए बना दिए हैं कि बच्चे अलग पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए बनाए हैं। और ये है तो छोटा और बड़ा का निशान जानकारी करने के लिए इसको भी बनाए हैं। और ये है पपीता है, तो घर का कपड़ा से बना हुआ है, रुई डाल के बना दिए हैं ताकि बच्चे जान भी सकें कि पपीता है। और ये आम है, तो 2 कलर का आम बनाए हैं घर का कपड़ा से, तो बच्चे जानकारी चले कि हाँ आम है, और आगे उनका जिस दिमाग बढ़े। और ये निमंत्रण कार्ड का चिड़िया बनाए हैं कि बच्चे हमारे जैसे चिड़िया देखते हैं, चलाएं और खुशी से खेलें अच्छे में। और ये भी एक चिड़िया बनाए हैं, तो बच्चे भी देखते हैं तो खुश होते हैं कि मम्मी घर का कपड़ा से बना देती हैं अच्छे से। और झुंझुना बनाए हैं जो डिब्बा का है, इसमें मटर का दाना भर के बहुत बढ़िया। तो ये सरोज जी थोड़ा सा ये बताएंगे कि इतने सारे सामान जो आपने बनाए हुए हैं, ये आपने खुद से बनाए हैं या फिर कहीं से आपने सीखा है? जी मैंने सीखा है, मीटिंग के दौरान से हम लोग को पता चला कि कोना खेल बनाइए बच्चे के लिए, तो बच्चे खेलें, जानकारी भी चले और बच्चे का दिमाग का विकास भी बढ़े, तो इसलिए हम लोग बना के रखे हैं, अच्छे से सजाए हैं, बच्चे खेलते हैं। और इसमें ये भी पता है चला है कि जैसे बच्चे का 3 साल तक बच्चे का दिमाग 80% आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग जब से बनाए हैं तब से बच्चे हमारे खेल रहे हैं, तो तेजी से सीख रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और मेरे 4 बच्चे हैं, एक है 8 साल का, एक है 10 साल का, और एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो खेल कोना से खुशी होकर खेल भी रहे हैं, अच्छे आगे बढ़ रहा है, हम भी देख रहे हैं अच्छे से, मदद भी कर रहे हैं उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये रहा सरोज जी और रेणु जी के घर में उन्होंने क्या क्या चीजें बनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल लो कॉस्ट और मिनिमम 0 कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। जो हम फेंक देते हैं वो रिसाइकलिंग मटेरियल्स कैसे बना रहे हैं और बच्चों के खेलने और सीखने के लिए वो कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको आप लोगों के सामने ये लोग पेश किए हैं। अभी हम हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो साथी बैठे हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि उनके वहां पे क्या चीज चल रही है। ओवर टू यू जावेद। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी। और पूरा खजाना दिख रहा है, बहराइच में है, काफी अच्छा लग रहा है कि काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। अच्छा, हमारे साथ दादाजी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार सभी को अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम कजली लाल है, मैं पनगी कला निवासी हूँ, और मैं आपकी कितनी पोतियां हैं? हमारे 2 पोतियां। तो कड़ीले लाल जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो खेल कोना जो आपने अपने घर में बनाया, इसका विचार कहाँ से आपको आया? हम अपने गांव में टहलने गए थे सर्वेश जी के घर, तो हमने देखा कि सर्वेश जी के घर खेल कोना बना हुआ है, जिसमें भगवान की पूजा का अलग बना है, बच्चों को खेलने का अलग बना है, और बहुत अच्छा उन्होंने बना रखा था। तो हमारे मन के अंदर विचार आया कि हम भी जाएं और अपने घर में बनाएं, तो हमने खेल कोना अपने घर में भी बनाया और बहुत अच्छा बनाया, जिसमें तो एक पोती हमारी केजी में पढ़ने जाती है और दूसरी तो अभी बहुत छोटी है। तो छोटी पोती हर समय उसको खेलती है,
जितने टाइम देखो उतने टाइम खेलने लगती है और खेलने में उसको बहुत मजा आता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो शाम को कहती है दादाजी कहानी सुनाओ, बाबा कहानी सुनाओ, तो हम उसको कहानी भी सुनाते हैं। तो एक बार जितने लोग आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, तो आप वहाँ पर किस तरह से कहानी सुनाते हैं, किसके माध्यम से कहानी सुनाते हैं, तो जरा एक बार सबको आप उस कहानी का एक नजरिया दिखा दीजिए। हाँ, तो हम सुनाएंगे, जरूर दिखाएंगे आपको। जैसे एक बाग में बाबा जी रहते थे। एक बाग में बाबा जी रहते थे। तो बाबा जी उसमें बहुत सारे तोता थे। उसमें बहुत तोता थे। तो उस तोतों को बाबा जी पढ़ाया करते थे। कहते थे कि एक बहेलिया आएगा और अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, हम नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। ये बाबा जी ने उन तोतों को पढ़ाया। तो तोता दिन भर चाहे जहां टहले, शाम को जब आते थे या दिन में भी आते थे तो तोता वही रटा करते थे। तो बाबा जी बहुत खुश थे। तो एक बार एक बहेलिए की बीबी ने क्या किया, वो गई जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। वो जंगल में लकड़ी बीनने के लिए उसी बाग में पहुंची। तो वो जब वापस आई तो अपने आदमी से कहने लगी, बहेलिया से कहने लगे कि उस बाग में बहुत तोता है और जाओ आप उसमें से तोता पकड़ करके लाओ। तो वो बहेलिया चल देता है। चल देता है तो क्या करता है, वो उसी बाग में पहुंचता है जहां पर तोता थे। तो उस बाग में वो पहुंच जाता है। पहुंच जाता है तो बाबा जी वहां बैठे होते हैं और बहेलिया उसी में जाता है तो अपना जाल बिछा देता है। जाल बिछा देता है और दाना डाल देता है। और वो तोता क्या करते हैं, तोता वो वही रट रहे हैं। कहते हैं एक बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, हम नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। ये तोता कह रहे हैं। तो वो बहेलिया अपना जाल समेट करके और वापस अपने घर चला जाता है। जब चला जाता है तब उसकी बीबी क्या कहती है, उसकी बीबी फिर बोलती है, कहती अरे तुम तो वापस आ गए, क्या बात है। तो वो कहता है अरे वहां पर तोता तो ये रट रहे हैं, कहते हैं कि एक बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, हम नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। तो बहेलिया की बीबी ने कहा कि अरे तुम वापस जाओ, वापस जाओ और वहां जाल बिछा के बैठो तो जा करके। तो वो बहेलिया फिर अपने चल देता है बाग की तरफ। जाते जाते और बाग में पहुंच जाता है। तो उसमें क्या करता है, फिर वो अपना जाल बिछाता है और उसी में दाना डालता है। दाना डालता है तो अब वो और कहीं छिप करके बैठ जाता है। तोते क्या करते हैं, तोते उसमें वही रखते हैं, कहते हैं कि एक बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, हम नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। यही कह रहे थे। बहेलिया चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे कर करके एक एक तोता या दो दो तोता उस जाल में आते गए और फंसते चले गए, फंसते चले गए। बहेलिया ने क्या किया, अपना जाल समेट करके और तोतों को लेकर के अपने घर चला जाता है। तो इस तरीके से ये हम अपनी पोतियों को कहानी सुनाया करते हैं, जिसमें हमारी पोती बड़ा हमसे सवाल पूछते हैं कि बाबा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बहुत अच्छा। तो करीर लाल जी, जिस तरीके से आप पपेट का इस्तेमाल करके बच्चों को घर में कहानी सुना रहे हैं जी, और अपनी पोतियों को ये कहानी जो पपेट के माध्यम से आप सुनाते हैं, तो आपने बदलाव में क्या क्या देखा है कि बच्चे क्या क्या चीजें सीख रहा है? बच्चा हमारा बहुत ये चीजें हमसे क्वेश्चन करके पूछता है कि बाबा ये तोता रट रहे थे और फंस कैसे जाते हैं। तो हमने बताया कि बेटा ये रट्टू तोता हैं, रट्टू हैं, ये रटते रटते और उसी लालच में फंस जाते हैं।
और बहुत प्रकार के क्वेश्चन करती है वो, हम उसको बताया करते हैं सारी बातें। तो कड़ीलाल जी का ये जो अनुभव है बच्चों के साथ में पपेट जो घर पे बना के और उसके माध्यम से स्टोरी टेलिंग करने का, इससे इनका जो है इनकी पोतियों के साथ में कहीं ना कहीं चीजों के बारे में बातचीत करने का अनुभव बढ़ा है। बच्ची इनका जो है, इनकी बच्ची जो पोतियां हैं वो इनसे प्रश्न कर रही हैं, चीजों के बारे में जान नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम सभी ने भी बचपन में जरूर या तो हमने कहीं पे इसका अनुभव किया होगा या हम किसी को ये किए होंगे। तो आप में से किन किन ने किया है कृपया चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब थैंक यू कड़ीलाल जी। अब हमारे साथ जो दूसरी एक केयर गिवर जुड़ी हैं जो कि बुआ है शिवानी जी। शिवानी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे एक बार सबको अपना परिचय दे दीजिए। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शिवानी भारती है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर ग्राम परसा से। शिवानी जी, आपके जो दो भतीजे हैं रियांश और प्रियांश, तो आप बता रही थी कि पहले उनका आपके साथ में इतना बेहतर जो है जुड़ाव नहीं था। ये खेल कूद ने कैसे मदद की आपको उनके साथ में बेहतर जुड़ाव बना? चलिए सर, जब पहले हम अपने भतीजों को कुछ सिखाने और बताने का प्रयास करती थी, उनको अपने पास बुलाकर बैठाती थी। जो कुछ भी मैं उनको सिखाती थी वो नहीं सीखते थे, बैठते ही नहीं थे हमारे पास। तो हमने सोचा कि अपने घर पे एक खेल कोना बना लें जिसमें हम बच्चों को नई नई चीजें सिखा बता सकते हैं। तो हमने अपने घर पे एक खेल कोना बनाया और उसमें बहुत सारी चीजें लगाई जिसको हम खेल खेल के माध्यम से उन बच्चों को सिखा व बता रहे हैं, जिसमें उनको बहुत आनंद आता है। अब वो हमारे साथ बैठने भी लगे हैं, कलर की पहचान करवाते हैं, आकार की पहचान करवाते हैं, जानवरों की पहचान करवाते हैं। कुछ जानवर भी मैंने उस खेल कोने में बनाए हैं जिसको पकड़ के वे उनकी आवाज निकालते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं इस खेल कोना में। शिवानी जी, आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो जब आप कॉलेज चली जाती हैं उस दौरान क्या बच्चे करते हैं, इसके बारे में कैसे पता चलता? जब पहले हम कॉलेज जाते थे तो जब वहां से मैं आती थी तो देखती थी कि हमारे घर के जो बच्चे थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। लेकिन जब से हमने ये खेल कोना बनाया है और जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो हमारे घर के मतलब हमारे पापा बच्चे के दादाजी हैं और मेरी भाभी जो बच्चे की माँ है, उनके साथ में बैठ के वो हमें खेल कोना में खेलते व पढ़ते दिखाई। तो शिवानी जी का ये जो अनुभव है खेल कोने के साथ में, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि खेल कोना बच्चों का माँ बाप के साथ में, परिवार के जो देखभाल करता है उनके साथ में किस तरह से उनका जुड़ाव लगाव और बढ़ाता है। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं सीतापुर, और मैं रिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां के जो देखभाल करता है उनके भी वो एक्सपीरियंस जो है साझा। थैंक थैंक यू सो मच जावेद जी। तो जैसा कि अभी हमने देखा बहराइच में कि हमारा खेल कोना दिखता कैसा है, क्या क्या मटेरियल्स हैं जो हमारे खेल कोने के पार्ट होते हैं और उसे किस तरीके की चीजें, कितनी वैरायटी ऑफ टॉयज और मटेरियल्स जो है वो हम बनाते हैं। और साथ में हमने लखीमपुर के केयरगिवर से ये समझने की कोशिश करी कि प्रैक्टिसेस के तौर पे हम किन चीजों को अडॉप्ट करते हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग एज अ प्रोसेस हम इस खेल कोना का पार्ट बनाते हैं। अभी मैं इनवाइट करूंगी मीना जी, प्रेमा जी को कि आप अपना परिचय देंगे सभी को, और फिर उसके बाद हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे और किस तरीके के प्ले बच्चों के साथ करते हैं, स्पेशली जब हम काइंड्स ऑफ प्ले, खेलों के प्रकार की बात करते हैं तो क्या अलग अलग खेल के प्रकार जो है ये अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो ये अभी हम मीना जी से सुनेंगे। मीना जी। सभी को मेरा नमस्ते। मैं ग्राम बनियानी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीना देवी है। हमारे 3 बच्चे हैं। जो मेरा एक बच्चा है 6 साल का, वो स्कूल जाता है कक्षा 2 में, और जो मेरी एक बिटिया है वो 4 साल की है, और जो मेरी एक बिटिया है वो भी 1.5 साल की है। तो हमारी जो बड़ी बिटिया थी पहले गलियों में ऐसे घूमा करती थी, और जैसे कोई पन्नी पाती थी देखने में अच्छी लगती, उठा लाती थी घर को। जैसे कहीं से डिब्बा पाती थी तो उठा लाती थी। तो मैं पूछती थी बिटिया से क्यों लाती हो, तो बोलती थी मम्मी खेलना है। तो
मैं मन में मेरा ऐसा लगता था कि कहीं हमारी बिटिया को मतलब कहीं मतलब हमारी बिटिया को बीमारी ना हो जाए, क्योंकि नशीले पदार्थ होते हैं ना, नशीले पदार्थ होते हैं तो लेकर आती थी। तो मैंने ये समझा खेल को ना सुरक्षित अपने घर में क्यों ना बना ले। तो जब से हम सुरक्षा को लेकर मैंने समझा कि अपने घर में जैसे खेल को ना सेटअप किया है एक जगह पर, तो मिट्टी की मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है। मैंने मिट्टी की गोली भी बनाई है और चूल्हा भी बनाया है, कटोरी भी बनाई है, थाली भी बनाई है। तो हमारी बिटिया जुट्ठू मुट्ठू मतलब घर में खाना बनाती है और हमसे कहती है कि मम्मी हमको एक दो टाफी ला दो, तो हम मतलब जब खेल को ना खेल होंगे तो सब लोग मिलकर आपस में बांट कर खाएंगे तो बहुत मजा लगेगा। और हमारे खेल कोना के पास एक बॉल रखा है। तो जब हमारी बिटिया मिट्टी के पहले तो सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन खेलती है। तो जो छोटी बिटिया है वो तो बहुत छोटी है, तो संग में मतलब वो लगी रहती है। जो छोटी छोटी गोली है उसे उसे खेलते हैं हाथों से। तो बॉल रखा है तो मतलब मेरा घर बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और मेरे घर के पास तालाब है। तो हमें पहले बहुत डर लगा रहता था कि हमारी बिटिया कहीं तालाब में न गिर जाए। तो मैं अपने जहाँ पर मेरा खेल कोना बना है, तो मैं अपना किनारा बंद करके अपने बच्चे को बॉल खिलाती हूँ। तो जो छोटी बिटिया है वो भी उछलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो छोटी है, और जो बड़ी बिटिया है वो उछल लेती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। वो छोटी बिटिया भी कोशिश करती है कि जैसे बड़ी दीदी उछलती है तैसे हम भी उछले, मगर वो छोटी है, उछलती है फिर गिर जाती है। जब गिर जाती है रोती नहीं है, हंसा करती है, उसको बड़ा आनंद आता है। तब जो हमारे यहाँ पर सबसे दिक्कत की बात तो ये है, हमारे गांव में आंगनबाड़ी कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पार्क बना है वहां से किताबें लाती है तरह तरह की। हमारे पापा काफी दूर है हमारे घर से, तो पापा हमारे लेकर जाते हैं। बड़ी बिट्टू तो चलो अपने आप चली जाती है, छोटी बिट्टू को गोदी में लेकर जाते हैं। तो वहाँ तरह तरह के फूल पेड़ लगे हैं, तरह तरह के फूल आते हैं उस पेड़ों में। तरह तरह की मतलब सामानें लगी हैं जिनमें अलग अलग, जैसे अलग अलग चीजों की आवाज निकालते हैं। जैसे कि थाली टंगी है तो उसमें अलग आवाज निकालते हैं। घंटी लगी है उसे बजाते हैं। तो जो बड़ी बिटिया है तो दादा से पूछती है कि पापा इसमें आवाज कैसी आती है, इसमें देखो कैसी आती है। और छोटी बिटिया है तो जौन पावे तो बजावे लागते हुए, तो उसका बहुत आनंद आवत है। और झूला है बहुत सारे हमारे गाँव में, पार्क बना है, झूला भी है, तो वहाँ फिसलती भी हैं और खूब सब चीजों की पत्ती तोड़ती हैं। तो कहती हैं पापा यहाँ से पत्ती तोड़ कर ले चलो, अपने खेल कोना में धरेंगे। वहाँ गिनती भी लिखी है खेल को वहाँ पार्क में, तो पढ़ती भी हैं। तब पापा वहां से लेकर आते हैं। बहुत सारी किताबियां रखी हैं लाइब्रेरी में पार्क में। जब वहां से आते हैं तो पढ़ाते हैं। फिर मैं भी समय बच्चों को बहुत दे लग पहले इतना नहीं समय हमारे पास था, क्योंकि मतलब बैठे रहती थी, हमको नहीं मालूम मालूम था खेल कोना के बारे में। जब से खेल कोना के बारे में हमें पता है तभी मैं भी नहीं आराम ज्यादा करती हूँ। हम बच्चों के संग में लगी रहती हूँ। और हमारे पापा जब टाइम पाते हैं तो अच्छी से अच्छी कहानियां बच्चों को सिखाते हैं। तो जो छोटी बिटिया है हमारी, तो पापा को अच्छे तरीके से देखती है। और जो बड़ी बिटिया है 4 साल की, वो जब पापा हमारे चले जाते हैं तब उसे मतलब पढ़ती है कि जैसे कि पापा पढ़ते हैं। मुँह से मतलब आवाज आवाज निकालती है, ये नहीं जान पाती कि क्या लिखा है क्या पढ़ रहे हैं। तो उसे मतलब ये पता हो गया है कि जैसे पापा पढ़ते हैं ऐसे हम भी पढ़ेंगे। तो हमसे पूछे कि मम्मी हम सही पढ़े ना, हम कहते हाँ पढ़ो क्या सही पढ़ रही हो। जो छोटी बिटिया है तो पन्ना पलटती है तो उसको बड़ा आनंद आता है, आराम से पन्ना पलटती है। जहां पर बोल दो बिटिया वहीं रखो तो वहीं रखेगी। तो हमें लगता है कि खेल कोना से हमारे बच्चों का जो दिमाग है 90% मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो हमारी छोटी बिटिया है खेलती है गिट्टी और उठाकर उसमें रखती है, उसमें से इसमें रखती है। जो छोटी हाथों की छोटी छोटी मांसपेशियां हैं ये बढ़ रही हैं। और पूरे और जो बॉल खेलती है तो इससे क्या होता है पूरे शरीर का विकास होता है, उछलती है कूदती है, इससे पूरे शरीर का विकास होता है। और जब कहानियां सुनाते हैं पापा तो उससे क्या होता है बोली मतलब भाषा पहचानते हैं कि बोली कि पापा मेरी कहानियां सुना रहे हैं, तो भाषा का विकास होता है। थैंक यू सो मच मीना जी। तो बहुत ही ब्यूटीफुली मीना जी ने बताया कि सेवरल एक्टिविटीज हैं। बुक रीडिंग एक एक्टिविटी है, साथ में बहुत सारी मैथ्स की एक्टिविटीज है, जिसमें ना सिर्फ बच्चों के शुरुआती भाषा का विकास हो रहा है, बट बहुत सारे शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में भी बहुत ही ब्यूटीफुली मीना जी ने बताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विमलेश जी से, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे
खेल कोना जो है वो कोने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोने से बाहर निकल करके बच्चों को बाहरी दुनिया से भी अवगत कराना बहुत जरूरी होता है, और वो एज अ फादर कैसे इस रोल को करते हैं। और तो अभी हमारे साथ विमलेश जी अपने अनुभव के माध्यम से इसके बारे में बात कर रहे होंगे। विमलेश जी। मेरा नाम विमलेश कुमार है, मैं ग्राम जटार, पोस्ट धौली, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। जितने भी आगा खान फाउंडेशन से जुड़े हैं, मुझे बोलने का मौका मिला, उस सभी को धन्यवाद। मेरे घर पर खेल कोना बना है। खेल कोना वह स्थान है जो बच्चों खेल कोना वह स्थान है जो बच्चों को एक सपनों की दुनिया जो बच्चे देखा करते, तो वो हकीकत में देख रहे हैं खेल कोना के माध्यम से। तो उसमें बच्चों को खेलने, आपस में खेलने का मौका मिलता है, और आसपास के बच्चे जो हैं, गांव के हमारे भाई के बच्चे या आसपास पड़ोस के बच्चे, वो भी एकजुटता बना रहे हैं। और हमारे भाइयों में जो भी आपस में दूरियां थे या हमारी वाइफ के बीच में जो दूरियां थे, बच्चों के माध्यम से वो भी एक दूसरे से ईर्ष्या, लगन या दूर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब खेल रहे हैं आपस में। तो हमारे बीच बीच में जो ईर्ष्या या जलन भावना थी, वो भी एक माध्यम से दूर हो रही। भाई भाई में जो तनाव था, तो बच्चे एक बैठ खेल खेल रहे हैं, तो वो भी दूर हो रहे हैं उन बच्चों के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा चीज है खेल कोना। और हम खेल कोनों में विभिन्न प्रकार की जो बर्तन है या ये अनाजे हैं, तो हकीकत में भी थोड़े बहुत अनाज वहां पर रख देते हैं, जैसे चना है, मटर है, गेहूं है, सरसों है। तो वो भी बच्चों को ज्ञान देते हैं कि ये दालें हैं, ये फल हैं। सब्जियों में रख देते हैं, जैसे तोरई है, लौकी है। तो हकीकत में थोड़ी बहुत सब्जी वहां पर डाल देते हैं कि ये बाहरी भी दुनिया से थोड़ा बच्चे अवगत हों, तो उनको भी दिखाते हैं ये सब्जी है, दालें हैं, ये बर्तन हैं। और कभी कभार जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको खेत में भी ले जाते हैं और उनको दिखाते भी, इसका पौधा इस तरह होता है, ये भिंडी का है, ये तोरई का है, ये लौकी का है। तो उनको बाहरी सी दुनिया भी दिखाने का प्रयास करते हैं। हम सभी पिताओं से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक समय दें और उनको बाहरी दुनिया से भी अवगत कराएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विमलेश जी। तो विमलेश जी मोर और लेस ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी खेल कोना में सामान रखा गया है, वो वहां तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जितना भी पॉसिबिलिटीज हो उसे बाहर जा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे खेत में ले जा करके बच्चों को उन सब्जियों को रियल में दिखाना कि वो सब्जी कहाँ से आ रहा है, और फिर उस पर बातचीत करना। अभी हमारे साथ प्रेमा जी है। प्रेमा जी ब्रीफली बात करेंगे कि कैसे बच्चे जो है वो दिखावे वाले खेल उस खेल कोने में खेलते हैं। प्रेमा जी। नमस्ते, मेरा नाम प्रेमा देवी, ग्राम पंचायत जटाहा, जिला सीतापुर से हूँ। हमारे घर पे घर कोना बना है, तो हमारे 4-5 बच्चे हैं, तो छोटे बड़े जो भी है साथ में खेलते हैं, और हमारे पास पड़ोस के भी बच्चे हैं, वो भी खेलने आ जाते हैं घर कोने में। तो हमारा बेटा जो 2.5 साल का शुभ है, तो दिखावा वाला खेल है, तो मिट्टी के बर्तन हमने जो भी घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमने सारे बना दिए हैं। तो चाय बनाता है, कहीं से बाहर अगर उसके दादाजी जाएंगे तो वहां से आएंगे तो कहेगा दादाजी हमने आपके लिए पनीर बनाया है, छोला बनाया, पूरी बनाए हैं, जो भी मैं मतलब उसके मुंह में आता है वो सब बोल जाता है। तो कहेंगे कि बेटा बनाया है तो खिलाओ, तो जो मिट्टी के बर्तन है उसके माध्यम से वो परस परस के खाना देने लगता है कि दादाजी ले खाइए, दादी जी आप खाइए, बुआ है बुआ जी खाइए, और भाई बहन जो भी है उनको सबको परसने लगता है। और वो बुखार वाला खेल ज्यादा खेलता है, डॉक्टर वाला खेल ज्यादा खेलता है। तो बुखार है, अगर कहने लगो सर में दर्द हो रहा है, बुखार है, तो लाएगा, कहे मम्मी मैं लाओ बुखार आपका चेक कर दे, तो वो बगल में लगाया किल्ला लाएगा, एक बगल में लगा देगा, कहीं बुखार तो मम्मी आपके 100% है। बहुत मजा आता है बच्चों के साथ खेलने में। और हमारे घर में बच्चे भी, जो छोटा है उसके ज्यादा मतलब दिमाग का जो विकास हुआ है तो उसको ज्यादा हुआ है, और जो बच्चे हैं उनको अगर कोई बात बताओ तो उनके समझ में नहीं आता है। जो हमारा छोटा बच्चा है, हमने उसके साथ समय दिया है, तो उसको मतलब अगर हम कुछ कहें काम तो करता भी है और सीखता भी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी करार जी को कि प्लीज टेक द सेशन फॉरवर्ड। थैंक्स अ लॉट रिया। और
सबसे पहले तो सभी केयर गिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, सरोज जी, कधीरे लाल जी, शिवानी जी, प्रेमा जी, और विमलेश जी और मीना जी, आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, और बातें ही नहीं बताई है, करके दिखाया भी है। तो एक बार हम क्लैप भी कर सकते हैं इनके लिए। अगेन थैंक्स अ लॉट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आई थिंक तो एक बार उस पे बात करते हैं। तो आई थिंक आप में से कोई अगर संक्षेप में ये बताए, आप केयर गिवर्स में से, कि आपने बच्चों में क्या बदलाव देखा है। जो भी खेल कोना है, खेल कोना की वजह से बच्चों में क्या बदलाव आया है, तो आप में से एक दो लोग शेयर कर सकते हैं। जी, विमलेश जी। खेल कूदने से बच्चों में सीखने की तीव्रता बढ़ गई है। कोई चीज सीखना चाहते हो तो बहुत तेजी से उस चीज को पकड़ लेते हैं, उसका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई चीज सीखना है तो बहुत तेजी से सीखते हैं बच्चे। और पढ़ने के प्रति तीव्रता बच्चों की बढ़ी है, खेलने के प्रति या पढ़ने के प्रति, और कुछ चीज समझने के प्रति उनका नजरिया बढ़ गया है बच्चों का। धन्यवाद विमलेश जी। या प्रज्ञा जी, रेणु जी शेयर करना चाहते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों के प्रति। जी रेणु जी। जी, हम बच्चों के जो बदलाव है हम बताना चाहते हैं। कल हमने गए थे केंद्र पर, स्कूल खोले थे, वहाँ बच्चे ने, हमारे साथ में ही बच्चे जाते हैं, वहाँ बच्चे ने खेल कोने में बैठ करके खेल खेलने लगे। हमने बैठ गए कि बच्चे तो खेलने लगे, कुछ देर खेले, कुछ देर खेलने के बाद जो और बच्चे आएंगे तब हम उसको पढ़ाएंगे। बच्चे ने कोने में बैठ करके खेलने लगे। खेलते खेलते वो माचिस के डिब्बे मिल गए उनको। माचिस के डिब्बे उनको काने में लगा करके बोलते हैं, हेलो हेलो, कहाँ हो, जल्दी आओ, बिटिया रो रही है, तुम पापा बन जाओ, हम मम्मी बन जाए। ऐसे खेल खेल रहे थे। तो क्या किया, जल्दी आ जाओ, बिटिया रो रहे हैं। तो बिटिया क्यों रो रहे हैं, बिटिया को दे दो मोबाइल, दे दो, बिटिया देखेंगे, रोएंगे नहीं। फिर बोलते हैं, पापा हमको पैसा दे दो, हमको बाजार जाना है। तो पैसा से क्या करोगे, पैसा से हमको टिक्की खाना है, हम बाजार जाएंगे। तो ये रेणु जी शेयर कर रहे थे कि बच्चों में उन्होंने जो बदलाव देखा वो इस तरीके से है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रिटेंड प्ले की तरफ जा रहे हैं, नकल करना, अभिनय करना, जो दूसरों को वो देखते हैं वो और ज्यादा करने लगे हैं। कुछ और के फिर घर में आए हम, काल शाम के बात है, जो हमारा पोता है 3.5 साल का है। बाहर से उसके पिताजी जब घर पे आए तो खेल कोने के तरफ ऐसे देखे हमारा पोता, देखते देखते उसके पिता आ गए घर पे, पापा हमने एक आम रखे हैं, खाओगे? तो पापा ने कहा एक आम रखा है। उसने सोचा कि आम के टाइम है, घर में रखा होगा, तो एक आम रखा है बेटा तुम खा लो। हम नहीं खाएंगे। नहीं पापा, बहुत बड़ा आम है, बहुत अच्छा आम है, एक आम रखा है, खाओगे? तो रेणु जी थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। थैंक यू। और रेणु जी के बारे में बताएं कि रेणु जी आंगनवाड़ी सहायिका भी हैं, तो वो जो भी उन्होंने खेल कोना से सीखा है या जो भी मटेरियल्स दिखाया है इन्होंने, वो बाकी आंगनवाड़ी पे भी लेके, आंगनवाड़ी सेंटर में, और जो माता और अदर मदर्स जुड़ी हैं आंगनवाड़ी सेंटर के साथ, उनके साथ भी वो नॉलेज एक्सचेंज और स्किल एक्सचेंज कर रही हैं। और साथ ही साथ हमारी जब ट्रेनिंग्स होती है तो रेणु जी वहाँ पे एक मास्टर ट्रेनर के तौर पे भी एक्ट करती हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो कि रिफ्लेक्शंस हमारे खेल कोना से आते हैं वो शेयर करना चाह रहा था। तो बेसिकली एक चीज जो आता है कि द खेल कोना, आफ्टर वी established खेल कोना, the usage of mobile and screen time have been reduced drastically, and also caregivers have told that they got other means of engaging children
earlier mobile was the only way to engage children. So also we have seen and caregivers accept that fact that the bonding of caregivers with children has been improved, and also other caregivers in family. I mean, like as Sivani from Lakhimpur was referring earlier, she was only one who was taking care of children at their home, at her home. Now her mother, father, and even elder sibling and sister-in-law is also giving time to the children at home. The last one was like some caregivers have start reflecting on their own personal behaviors and actions. And they are very sensitive towards the fact that whether their action or behavior it will impact children negatively. So that is also one impact we saw. So next, I would like to request Pragya to share some steps for establishing Khel Kona, in case some of you might be interested to replicate that in your areas. थैंक यू सो मच करार. तो स्टेप्स के लिए अगर मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ स्टेप्स वी फॉलोड while establishing this Khel Konas in each households. So firstly, we done this identification process with the households where children and parents are there, and the age group was 0 to 6 years. The second step, we form the formation of caregivers, caregiver groups, that can be mother's group, father's group, and grandparents group, so that individually we can engage with them and discuss with them differently. Third was demonstration of setting up Khel Kona, how to do this, क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो जाके उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बना के दिखाते भी है कि किस तरीके से खेल कोना बन सकता है. Along with, so we take help from आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, SAG मेंबर्स जो एक्टिव है और जो गांव को अच्छे से जानते हैं. Fourth step was capacity building of the caregivers. So regularly we do the capacity building once in a month or twice in a month whenever our on-site support team visits these places. And the fifth point was to regularize the thing, to habitual stimulation, the way we focus on regular intervention. Similarly, in terms of Khel Kona establishment, regularize करना भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है. And the most important part is follow up, on-site support. आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू, हमारे टीम के थ्रू रेगुलर सपोर्ट और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको शेयर करना थ्रू वीडियोस, थ्रू ऑडियोस, थ्रू व्हाट्सएप, and also word of mouth. So these are the steps we followed while developing this Khel Kona. And also we have already shared, and you can see the people like Renu ji, Saroj, they are already active member in the community. So they are actively following up with the team members. Thank you. Karar, over to you. Thank you, Pragya. I would like to hand over to Preeti for the next session. Yeah. Thank you, Karar and Pragya. It's been amazing. मतलब हमारे केयर गिवर्स हमको कितना प्रोत्साहन देते हैं, कितना हमको इंस्पायर करते हैं, इसकी कोई हद नहीं. So a big thank you. I request all viewers now to post their questions in the chat box. Please unmute and talk to us about what you have to share. आपके reflections, आपके सवाल, they are most welcome. हमारे caregivers हमारे साथ हैं और ECD की टीम AKF की यहीं है. हम आपके कोई भी सवाल हो तो हम we love to answer and hear from you. मुद्रा, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं. I see your hand raised. So we have Shubham in the chat box telling us about, बच्चों के लिए खेल उनके
फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे उसका योगदान देता है, मतलब खेल कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। और देखा जाए तो एक्चुअली प्ले इज एक्चुअली चाइल्ड्स वर्क, बच्चे सीखते ही खेल खेल में हैं। वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल appreciating our concept. We have Rekha telling us about, she also has play corners in 137 Anganwadis in Karnataka. It will be great to hear from you, Rekha. If you have any experiences to share from your work in Karnataka. Hi, I have a question. I'm Shweta. Can I go ahead and ask? Please, Shweta, please do. Yeah. So I just wanted to see, usually we know that there is a lot of long-term impact of any intervention that parents do with children. So similar with the Khel Konas, have they seen that when even though children from 0 to 6 have moved ahead, do they still find value in keeping those Khel Konas? Because even older children like to play and have a space for themselves. So do they see that Khel Kona like transforming into a different space as the children grow older? Any experience or any anecdotes from those experiences? Yeah, thank you, Shweta. Do we have any responses, and then I can also come in the end? हमारे केयर गिवर्स इस खेल को आगे चलते हुए कैसा देखते हैं? कुछ समय बाद खेल हमको समझ में आता है, कुछ सालों बाद है। जी बिल्कुल। तो बहराइच से हमारे साथ सरोज जी जुड़े हुए हैं। तो यही सवाल जब हम खुद भी जाके उनसे पूछे थे, तो क्योंकि उनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक 8 साल के हैं और एक 10 साल के हैं। तो हम सरोज जी से थोड़ा सा जानेंगे कि आपके बड़े बच्चे कैसे खेल कोना में खेल कोना को कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, और छोटे बच्चे में और बड़े बच्चों में आपने क्या बदलाव देखा है? बदलाव हमने यही देखा है कि बड़ा बच्चा जो है, तो जैसे उसके बाद जब वो था तब उसका ये सब नहीं था, और फिर बाद में ये सब जब से जानकारी हुआ है, बैठक हुई है, तब से जानकारी चला है। तो छोटा वाला बच्चा जो है तो उसके याददाश्त बहुत तेज है, और बड़ा वाला बच्चा जो है तो याददाश्त मतलब कोई चीज़ है तो कहना नहीं मानेगा, और छोटा बच्चा है कर भी नहीं पाए लेकिन चल देता है तुरंत, मम्मी हम कर देंगे। और कोई चीज़ अगर जिद करेगा तो हम बोलेंगे बेटा इस समय नहीं लो, पैसा नहीं है अभी ले देंगे या कल देंगे, हाँ मम्मी कल दे देना। बड़ा बच्चा जो मांगेगा मम्मी आज चाहिए तो हाँ चाहिए, नहीं है पैसा किसी से लेके आओ, पैसों भी लाओ, लेकिन हमको चाहिए, वो नहीं मानेगा। तो सरोज जी आप ये भी बोल रहे थे ना कि आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं, हाँ, तो वो कैसे खेल कोना में मदद करते हैं? मेरे बच्चे जैसे स्कूल से आए, बैग टांगे, तुरंत बच्चे का खेला देखें, तुरंत उसमें बैठ गए, बाबू हम बता रहे हैं ऐसे खेलो ऐसे। फिर उनको चित्र बताएंगे, पहचान कराएंगे, बेटा ये लाल है, हरा है, कलर पहचान कराएंगे, और राम है और सेफ है, ये सब का पहचान कराएंगे। तो मतलब बच्चे, छोटे बच्चे के साथ साथ बड़ों बच्चे का भी दिमाग तो उसका भी सही हो गया है, तेज हो गया है, और अच्छे से खेल रहे हैं, बाहर नहीं ज्यादा खेल रहे हैं पहले के जैसा। तो सरोज जी, जो आप सभी ने सुना कि उनके यहाँ पे पहले बड़े बच्चे बाहर जाते थे तो घर में जो सोशल इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन खेल कोना बनने से उनमें एक दूसरे को मदद करना, स्कूल में वो जो सीखे हैं वो घर पे आके उसको प्रैक्टिस करना, इस तरीके से वो उसमें बदलाव उन्होंने देखा है। प्लस खेल कोना बनने के बाद, जैसे सरोज जी भी बोल रहे थे कि पहले जब उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तब जिस तरीके से बच्चे बड़े हुए, और अभी जो 3 साल के और 4 साल के बच्चे हैं उनमें एनर्जी, एक्टिवनेस में उन्होंने बदलाव देखा है। थैंक यू। जावेद, आपकी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं? दादा आप म्यूट पे हैं। हम कड़ीले लाल जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर 2 पोतियां हैं, तो वो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे जो है बड़ी जो पोती है वो छोटी जो पोती है इनकी, उसके साथ में इस खेल कोने में इंगेज हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं।
हाँ, हमारी बड़ी पोती, उसका नाम कोमल है, वो केजी में पढ़ रही है। और वो छोटी पोती, उसका नाम स्वीटी है। तो स्वीटी को वो खेल में बताया करती है, सिखाती है। तो वो तो ABCD और हिंदी की गिनती और हिंदी के अक्षर लिख भी लेती है और पढ़ भी लेती है, और इंग्लिश के भी। तो उसको भी पढ़ाती है, और उसमें खेल कोना में उसको भी वो सिखाया करती है। जब भी वो स्कूल से आती है, या तो हम लेने जाएं स्कूल को, या कोई और लेने जाए, ना हम घर पे हों तो कोई और लेने जाता है स्कूल को, क्योंकि अभी छोटी हैं। तो जब वो आती है, थोड़ी देर सस्ताने के बाद बस वो खेलने लगती, और वो स्वीटी को खिलाया करती। वो स्वीटी को बहुत सारे खेल उसमें बताया करती है। इससे तो हमें ये प्रतीत होता है कि बच्चों में तो प्यार बढ़ता ही है, लेकिन बाबा का भी प्यार उसमें बच्चों को बढ़ता चला जाता है। और बाबा और पोती में बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत, हम तो सोचते हैं कि इसी तरीके से जब हम और बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी ये पोतियां आगे चल करके कौन पानी देगा, देने वाली तो यही होंगी। हम तो ये बातें सोचा करते हैं, और वो पोती हमसे बड़ा लगाव रखती हैं। तो खेल कोना के माध्यम से हम तो ये समझ रहे हैं कि बच्चों में प्यार भी बढ़ता है और बच्चों में नॉलेज भी बढ़ता है। तो कड़ीलाल जी, बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि घर पे हम कोई खिलौना अगर लाते हैं तो बच्चे जिसका होता है वो अपने पास वो दूसरे को देता नहीं है, चाहे घर का ही दूसरा बच्चा क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये खेल गुना उस स्टेप में भी आगे बढ़ा है कि बच्चे शेयरिंग करना सीख रहे हैं, आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये तो खेल का गुना है, ये तो हम सबका गुण। वो किसी बच्चे के लिए वो सीमित नहीं सोच रहे हैं इस चीज को। तो ये एक खेल गुना ने मदद भी की है और बच्चों को, छोटे बच्चों के साथ में घुल मिलकर खेलने की। थैंक यू। थैंक यू जावेद। एक और सवाल आया है जिसमें हमने अपने खेल कोने से बच्चों में जो बदलाव देखा है उसे कैसे मेजर किया है, क्या बदलाव और वो कैसे मेजर किया है। एक सवाल इस पे है, तो इस पे भी हमारे जावेद या रिया, प्रज्ञा, अगर इस पे हम बता सकें। और किस तरह से हमने बदलाव को तो यहाँ से बहराइच से कैन आई यस प्लीज। तो बहराइच से रेनू जी, क्योंकि रेनू जी आंगनवाड़ी सेविका भी हैं, तो वो सहायिका भी है, तो वो ये शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बदलाव देखा है उनके घर के खेल कोना और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं जिनमें उनके पोते पोतिए भी हैं, उनमें क्या बदलाव उन्होंने देखा है। तो जी रेनू जी, थोड़ा सा अगर हम आंगनबाड़ी में जो खिलौना है उतना ही खिलौना हम घर पे बनाए हैं। तो आंगनबाड़ी के खिलौने जितना है उतना ही हमारे घर पे खेल घर कोने में ही है। वहाँ से बच्चे खेल करके आते हैं, पढ़ करके आते हैं। जब घर पे आते हैं तो किसी वहाँ देखते हैं कि खेल कोने में बच्चे या बकरी किसी ने जाता है तो तुरंत उसको भगा देते हैं, ये हमारा घर कोना है, हमारा खेलने का जगह है, दादी देखो ये बकरी के बच्चा खा जाएगी, ये पोस्टर वोस्टर है ये सब खा जाएगी, आओ दादी मारो इसको। अभी खुद मारती है, हमको भी बुला लेते हैं, इतना बचाव करता है उसको कि नुकसान होने नहीं देता है कि ये हमारा खेल कोना है, हमारा घर कोना है, वो बचा के रखते हैं। और जो पोस्टर में सब फल जो बना के लगाए हैं उसको अपने मम्मी से कहते हैं, मम्मी आम खा लो, देखो हमारा घर में आम है। पापा से कहता है, पापा देखो हमारे पास 2 केला है, केला भी खा लो। पापा मम्मी हंसता है कि केला कहाँ है तुम्हारे पास, केला देखो वहाँ लगा है, खाओगी खाओगी। झूठ, हाथ में वो उसको ऐसे छू करके उसको मुंह में देते हैं कि लो खा लो। तो घर कोने में उनको बहुत इंटरेस्ट है और खेलता है, नुकसान होने नहीं देता है। ओके, तो जैसे रेनू जी ने कहा कि जो चीज वो आंगनवाड़ी में उन्होंने बनाए हुए हैं लर्निंग कॉर्नर्स में, उसी में से कुछ चीज वो अपने घर में भी खेल कोना में भी उन्होंने बना के रखे हैं।
तो बच्चों में किस तरीके से बदलाव वो देखते हैं कि जो चीज वो घर पे देखते हैं उसके साथ एक कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी उनके आंगनवाड़ी में भी बच्चों को मिलती है। तो ये हो गए केयर गिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे बदलाव देखते हैं। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और जिस तरीके से हमने इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते भी हैं, हमारे लिए वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज to develop a connection between caregivers and children in the खेल कोना। तो उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, और हर घर में बच्चे के लिए उनका एक स्पेशल कॉर्नर हो, चीज़ें जो है जो लो कॉस्ट मटेरियल हो, उससे वो इनोवेटिव तरीके से अपने घर के बच्चों के लिए सीखने का जो मटेरियल्स है, सीखने की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बना पाए। तो हमने ये देखा है कि जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हुआ है। आप लोगों ने सुना भी है कि फादर्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से एंगेजमेंट बढ़ा है। तो हमारे लिए मेजरमेंट का यही तरीका है कि कितना परसेंट, कितना समय जो केयर गिवर्स है वो बच्चों के साथ बिताते हैं। क्वालिटेटिव समय बिताना इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन खेल कोना। थैंक यू। आई होप आई हैव answered your question. Thank you, Pragya. Ria, you have your hand up. We'll quickly take your feedback as well. Yeah, so I just wanted to add what Pragya Devi was saying कि ये इन सारे practices को हम एक Google फॉर्म के माध्यम से करते हैं। तो जैसा कि हमने स्टेप्स में एक लास्ट स्टेप जो मेंशन किया हुआ था कि हम रेगुलर फॉलोअप और ऑन साइट सपोर्ट घरों में प्रोवाइड करते हैं। तो उस ऑन साइट सपोर्ट का एक जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम सपोर्टिव सुपरविजन भी कर पाए। तो एक हमारा कि प्रैक्टिसेस क्या चल रहा है इसे हम डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं और वो उसे हम गूगल फॉर्म के माध्यम से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उससे रेगुलर कलेक्शन के बाद हम उसमें इम्पैक्ट को मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ बच्चे में क्या बदलाव आ रहा है और पेरेंट्स में क्या, केयर गिवर्स में क्या बदलाव आ रहा है, उनके प्रैक्टिस में और उनके एटीट्यूड शिफ्ट में। सो या दिस इज व्हाट और ये जो बदलाव है वो हम बड़े हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जब आंगनबाड़ी में जा रहे हैं तो वो उनमें जो जिनके घर में खेल कोने हैं वो कहीं हद तक उनके जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं उसमें कहीं ज़्यादा उन बच्चों को पहले से क्योंकि एक्सपोजर है तो उनकी जो समझ है इस चीज़ को लेके कि भाषा की समझ हो या फिर गणित की समझ हो, तो इन बच्चों के लिए उन चीज़ों को पकड़ना जो प्री लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स होते हैं उनके साथ आगे बढ़ना। हम ये देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हमें ये बात बताते हैं कि बच्चों की वो समझ जो है अच्छी है, चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं और हमारे जो जैसे सोशल इमोशनल में बात हो चुकी है या फिर फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चों का फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों में खेल कोने की एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि वो लगातार चीज़ों को उठाते हैं, घुमाते हैं, चीज़ें पिरोते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हुआ है। बच्चे बहुत हद तक कई सारे नए वर्ड्स, शब्द सीखे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी कहीं बेहतर जानते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि जो हमारे केयर गिवर्स के लिए है कि उन्होंने आदत कैसे डाली खेल कोने में लगातार इन मटेरियल देने की, बनाने की। तो वो आदत कैसे बनी, कैसे उन्होंने कहा कि हम रोज खेल कोने को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और नए नए खिलौने भी बनाएंगे। तो ये कैसे हुआ, ये अगर हमें जल्दी से इस पे रिस्पॉन्सेज आ जाए तो। जावेद, बहराइच से सरोज जी बताना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे आदत डाली है। जल्दी जी, हम जैसे आदत उनके ऐसे डाली है, जैसे खेल कोना बना है तो बच्चे ऐसे खेलते थे, थोड़ा फिर पहले जैसा नहीं खेलते थे, थोड़ा खेले भाग जाए तो उनके आओ बाबू हम खिलाते हैं, तो हम उसके बाद साथ में बैठ जाते हैं, फिर तुरंत पहचान कराते हैं, तुरंत उसमें खिलाते हैं, बॉक्स लेके आते हैं, चित्र दिखाते हैं। तो जैसे सुबह भी खिलाएं, फिर दोपहर हुआ, फिर हमको टाइम मिला, फिर बेटा यहाँ बैठो, यहाँ मैंने ऐसे इतना सारा खिलौना है, खेलो। तो इसे करते करते मतलब 2-3 दिन हमने उनको ज्यादा दिया समय,
तो बच्चे अपने आप वो बैठने लगे कि हम खेलेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ खेलते थे। फिर आंगनबाड़ी में अपने साथ तैयार करके साफ सफाई करके नहला के ले जाते थे, वहाँ से फिर यहाँ खेलते हैं। बहुत फास्ट है, सुबह उठ के फिर खिलौना ही याद करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सरोज जी। I'll just come again some questions which are important. एक तो कुछ सवाल इस पे है कि क्या ICDS डिपार्टमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने की बात हुई है, क्या हम उनसे ये चीज शेयर कर पाए हैं? ये विनीत का सवाल है, तो इस पे अगर हम बता पाए, बेसिकली प्रज्ञा, करार, रिया, अगर आप लोग इस पे रिस्पॉन्ड कर पाए। So Vinit ji, we are part of ECE consortium at a state level. So we have shared this with that forum. तो डिप्टी डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम भी उस फोरम का पार्ट है। तो ऑब्वियसली हमने शेयर किया है, एंड सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर आल्सो गेटिंग inculcated in the curriculum which is getting developed for caregiver training and responsive caregiving basically. और थैंक्स करार। एक सवाल ये भी है कि क्या हमें खेल कूदने में कुछ भी बदलने की कभी जरूरत पड़ी है? हाँ, किसी भी ये तरह बहुत का अच्छा बदलाव अगर खेल कूदने में हमने किया है तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक अगर कोई केयर गिवर बताना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली आई थिंक हमेशा ये चैलेंज होता है कि हम बच्चों के लिए नए चैलेंज कैसे क्रिएट करें। तो आई थिंक उस पे काफी केयर गिवर्स भी काम करते हैं, टीम भी काम करती हैं, और हमारी काफी सारे केयर गिवर्स तो अब काफी ट्रेंड हो गए हैं कि उनको पता है कि बच्चे का नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स तैयार करने लग गए हैं। तो हाँ, रिया आपको बोलना चाहते मीना जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी इस क्वेश्चन पे। हमारी मैंने कार बनाई है, उसमें पहिया लगा के रखे, जो हमारी छोटी बिटिया है 1.5 साल की, तो उसे जब चलाती है तो जो टूट जाते हैं तो उसे नहीं लगा रखती है। तो मैंने सोचा कि फिर से बना ले, क्योंकि उसको नहीं छूती थी। जब टूट गया तो उसे हटा दिया, जो अच्छा अच्छा सामान था उससे खेलने लगी। तो मैंने सोचा कि फिर ना इसे क्यों बनाते हैं। जब फिर बना के तैयार किया तो फिर उसे खेलने लगी। और मैंने इस मिट्टी के स्क्रीन टच फोन बना के रखे हैं, तो फोन से झूठू मूठू फोन करती है हेलो, तो बड़ी बिटिया से फोन करती है, कहती कि दीदी यहाँ आओ, तो वो आती है झूठू मूठू, तो कहती है कि डीजे बजाओ, तो झूठू मूठू डीजे बजाते हैं। तो सब लोग मिलकर, जितने हमारे गांव के बच्चे हैं तो मिलकर बाद में आते हैं, सब डांस करते हैं। फिर 1-2 रुपया देती हूँ मैं, तो टॉफी लाते हैं, फिर सब आपस में बांटते हैं। फिर झूठू मूठू केक भी काटते हैं। तो कहते हैं बड़ा आनंद आता है, इनके घर में खेल कोना बना है। और मैं अपने मम्मी से जाकर कहूंगी कि इसी तरह अब हमारे घर में भी खेल कोना बना, वहाँ खेलते भी हैं और आखिरी में डीजे भी बजता है उनके घर में, तो नाचते भी हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों का पूरे शरीर का विकास होता है और उनको अच्छा भी लगता है जब डीजे बजता है। थैंक यू सो मच। सो द आइडिया इज कि खेल कोना जो है वो जिस तरीके से बनता है वो उस तरीके से रहता नहीं है। बच्चों को हमेशा नया चाहिए, और शायद बच्चे उसे रहने भी नहीं देते हैं। अगर खेल कोना आज बना है तो शायद वो 1 हफ्ता भी वैसा नहीं रहता है। उसे हर वीक, हर समय कुछ ना कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू मीना जी बताना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ नया उसमें जुड़ते रहना चाहिए, जो कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, और जिसे बच्चे तोड़ रहे हैं वो वापस से बनाने की आवश्यकता होती है। थैंक यू रिया। तो सबके ही सवाल हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। दीज आर वेरी इंसाइटफुल। हमें ज़रूरत है कि हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें अपने खेल कोने का, और ये भी देखें कि वो आगे जाने वाले समय में भी केयर गिवर्स उससे जुड़े रहें, बच्चे उसको इस्तेमाल करते रहें, खेलते रहें, सीखते रहें उसमें। आगे बढ़ते हुए अगर आप लोग को किसी भी तरह का हमसे सवाल है या आप खेल कूदने के बारे में ज़्यादा और जानना चाहते हैं, हमने एक लिंक पोस्ट किया है चैट बॉक्स में, विच इज़ गूगल फॉर्म। उसमें आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स दे सकते हैं, और अगर आपको कोलैबोरेशन के लिए AKF के साथ कौन से एरियाज आपको लगते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। सो दैट इज ऑलरेडी इन द चैट बॉक्स. Sorry, Ketki, you asked me to share about our 137 Anganwadi, right? Yeah. So when we initiated our work 3 years ago,
actually Anganwadis didn't have materials at all. Very few Anganwadis had little materials. So we provided materials and we observed the children. No, they are very interested in touching them and playing with them, but teachers were restricting it. So then we created free corner where children, see, mornings, not all children come at once. So they come one by one. So when they come, they actually don't know what to do. So most of the time, teachers allows them to sit quietly in a corner. But after introducing this, the free play, actually, when children come, they take the materials and they play with that. And they initially, of course, children might not share the materials, but as they go on, they will learn to share the materials. They will use it and keep it back in its place, and they actually create a bond with Anganwadi. Like, this is my space. This is where I can access these resources and I can keep it back. Yeah, so that we have seen. And the teacher also like she talks like when child is playing, what are you doing? Why are you playing with the same toy every day? Don't you play with another toy? So please do share with others. So these kind of conversation like builds relationship with children. So, and we also have initiated one initiative called Oduva Mule that we actually now we have not focused so much. Initially we focused, but some of the mothers really took it seriously and they created Oduva Mule, like activity corner in their house. So where she kept all the materials like books, whatever belonged to the child. So she kept it in that, arranged it in the corners. Whenever child came with whatever activities the child has done in Anganwadi, the child used to bring and they used to display it there. So the mothers were like encouraged to create a habit of sitting with the child at least 1 hour, half an hour in a day, and play with the child, or allow the child to do the coloring activity, the coloring book that we had done. So many of the mothers really had taken, fathers too had taken, but mothers always in large number when it comes to below 6 years. So mothers had taken a lot of initiative and they had wonderful things with children. So that was but this what you have done is a great idea, but we have given ideas like use whatever is at home, like when you're introducing colors, when you're introducing shapes, you can use whatever is available at home, like rectangle. If you want to introduce, you can show the door and like that. But vegetables, through vegetables you can teach colors. But making these kind of resources is really a new thing for us, and I would really like to add in our process. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Rekha. I really love to hear from you. My email ID is already in the chat box. You could connect with me anytime. We'll also, very welcome all of you to visit our Khel Konas. If you can make it to our program sites, we'll be happy to arrange a visit as well. I just feel that, the more we make play universal for children, I mean, introduce it in all their worlds, whether it is an Anganwadi center or at home, the more the idea that material has to be saved and protected and stored, the more that idea starts waning. फिर वो जो सामान को लेके जो एक डर है वो दिल से निकल जाता है कि हमें सामान को कहीं टूट ना जाए या कहीं खो ना जाए उस तरह से. और हमने जैसे अपनी मास्टर क्लास के थ्रू आज बताया कि ये सारा कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपके आसपास के सामान से केयर गिवर्स रेगुलरली बना रहे हैं. इसमें किसी भी तरह की लागत, कोई भी खर्चा नहीं है. And once we just have to, I think, understand that everything which is available at home has a play element in it and can become, an element of play for children. So with that, I'll just wind up. So, I just want to express deep gratitude to our caregivers. आप हमें मतलब इंस्पायर करते रहते हैं और आपकी वजह से हम भी साथ साथ चलते रहते हैं.
Thank you to our audiences today. We are overwhelmed with your responses. कितने लोगों ने पसंद किया है? We are so happy that you liked our concept, liked the initiative. The questions were very insightful. It will help us to grow further. A big thank you to the X-Step team for their trust in our work and bringing the Khelkonas to all of us today. As I mentioned, the Google link is already in the chat, and now I hand over to Hita. Please take over, and a big thank you to all of us from AKF. Thank you so much, Ketki, your team, all the caregivers. It was mind-blowing, so inspiring. कितना अच्छा लगा सबका अनुभव सुन के, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों ने बनाई घर पे, बहुत इंस्पायर कर दिया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे सुन के. Lovely questions. The audience has been incredibly engaged. What can I say? I think anyone who wants to connect, please do fill in the form, Google form, and connect with the AKF team. They'll be happy to share with you anything that they've created. I will end here. Maybe if anyone wants to unmute and say something, please welcome. We have a few minutes still. So if anyone wants to share any experience, please do. I see Pragya. I'm just going to put spotlight on you. Thank you. मुझे रेनू जी बोल रहे थे कि मुझे कुछ कहना है सबके लिए. जी रेनू जी, हमारे पास 1 मिनट है, तो आप. पहले आपने पूछा ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, पहले जैसे है या बदलाव हुआ. पहले बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पे जाते थे, केंद्र वहाँ से खेल करके आते थे, पढ़ करके आते थे. उसके बाद घर में खाना खा करके इधर उधर जाते थे, किसी से लड़ाई किसी से झगड़ा, बाहर खेलते थे. अब है सीधे घर में आते हैं, बस सीधे घर में आते ही खेल कोने में उनकी निगाह पड़ता है, वहाँ देखता है और उसी जगह कुछ देर खेलता है, बचाव करता है. और जो हमारा बहू है वो सिलाई करता है, तो दूसरे मोहल्ले के औरत के साथ बच्चे आते हैं, तो बच्चे छू छू कर देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना नरम है, कितना चिकना है. ऐसे छूने नहीं देते हैं. जो बच्चे को चिंता नहीं है उसके छूने नहीं देता है. मम्मी इनको डांटो, हमारा ये तोड़ देगा, इसको बिगाड़ देगा, इसको डांटो. तो वो अपने घर में इतना बचाव करता है कि वो अपने घर कोना, खेल कोना जानता है कि ये हमारा है, हम बचा करके रखे. तो रेनू जी, लास्ट सवाल, आपने कितने आपके गांव में कितने घरों में खेल कोना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है. हम मौका पाते ही जुट जाते हैं कि ये बना के रखे, वो बना के रखे. देखिए एक कढ़ाई बनाए हैं, कितने अच्छा दिखता है. नहीं, कितने घरों में आपने बनाया है? हाँ, ये हमको बहुत अच्छा लगता है बनाने में. हम जैसे मौका पाते हैं वैसे ही बैठ जाते हैं इसको लेके. अपने घर तो घर है, अपने घर छोड़ करके 19 घर में हम कोना बनाए हैं. ऐसे उसको घर में जा जाकर तो कोना बनाए हैं, सब सजाए हैं. वो लोग दिखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं. Thank you so much. One huge takeaway for me is definitely that, the range of caregivers involved in this, grandparents, fathers, mothers, just absolutely amazing. And I think just what Ketki said, right? We have to make play universal in all spaces for children. And it's infectious. I see that in the eagerness with which the caregivers are speaking. I also had asked about, how it becomes a habit. I think when caregivers are seeing the change in front of them and seeing that they are able to do it themselves, I think that is the biggest kind of driver that they can do it from within. So thank you so much. Thank you, everyone. Ketki team fabulously pulled off the session so seamlessly. It was beautiful. So I'm going to stop here. Thank you. Have a great evening. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.